Let us first take a little stock of what we have completed till now and what are the topics that are yet to be completed. If you go by the units of your syllabus, we have completed 3 units already. And in the fourth unit, which is basically kinematics of particles of rigid bodies, is the first major topic. And the second major topic is kinetics of particles and rigid bodies. So kinematics and kinetics constitute your fourth unit. And we are currently dealing with the kinematics part. And in kinematics, we have already covered up to relative motion. And only one topic remains, that is projectile motion on plane and inclined plane. And once we have completed this topic, we will be done with kinematics of particles, and then we will start with kinetics of particles. So today, basically we are continuing with kinematics of particles and rigid bodies, and in specific, we are going to deal with projectile motion. I'm 100% sure that projectile motion is something that you have already studied in your school days. But we will revise our knowledge. We will get some new formulae to remember. Not new formulae, they are basically old formulae only. We will be basically brushing up your previous knowledge. There are a few derivations which can be directly asked of you, and there are obviously numerical problems related with projectile motion. So let us get started. Projectile means something that is thrown into air. That is the meaning of a projectile. Okay. Now, if you want to throw something into the air, you can choose to throw something vertically upwards. In that case, it will not be a projectile. It will simply an object thrown upwards, and it will retrace its path back and come back to you. Generally, we call something thrown into the air as a projectile when you project it at certain angle. So suppose you are standing at this point and you throw an object at a certain angle with the horizontal, let us say alpha. Then what happens is, what you have thrown takes the path of a parabola. And obviously it will go to a certain height and then it will fall back on the ground. So this phenomenon of throwing something into the air and allowing it to travel under the pure influence of gravity and nothing else. This is the topic of today's study. So if somebody asks you what is a projectile, the answer is very simple. It is something that is simply thrown into the air at a certain angle with the horizontal. Okay. So that is a projectile. Now, there are some important terms that you need to remember regarding the projectile, because in your examinations, any of these technical terms can be asked either as a derivation or as an explanation. So the first thing is, what do you understand by the trajectory of a projectile? Trajectory means the path traced by the projectile in space. So as you can see here, if you throw something at an angle, I have already told you that the path taken by the projectile will be a parabola. Now you don't have to take my word for it. There is a derivation which will prove that the path taken by the projectile is definitely a parabola and nothing else. So trajectory is the path. So in this figure, this curved surface that I've drawn, the parabola, is the trajectory. Velocity of projection.
There is no need to explain much here. The velocity with which it is projected. Okay. So if I say that I threw something with a speed of 30 meter per second at an angle of 20 degrees, then the velocity of projection is 30 meter per second. The only thing is, it is not purely horizontal or vertical, it is inclined at an angle of 20 degrees to the horizontal. Angle of projection, no need for any further explanation, you already know. The angle is generally measured with the horizontal. Okay. So if somebody tells you without any extra details that I have thrown an object or I'm throwing a projectile into the air at an angle of 40 degrees, how will you draw the projectile? If somebody decides that okay, 40 degrees, I will take 40 degrees from here and this should be the direction of throwing the projectile, then this is wrong. If without any further explanation somebody simply gives you an angle, then you have to remember that the angle in the analysis of projectiles is generally measured with the horizontal until and unless stated otherwise. So if somebody tells you in specific that you take the angle of projection measuring it from the vertical side, only then will you measure your angle of projection from the vertical side. Otherwise, generally if somebody tells you take the angle of projection as 20 degrees or take the angle of projection as 40, 45, 50, anything, then you have to measure the angle always from the horizontal side. That is one important thing that you have to remember. Time of flight. Time of flight is the total time taken from the point of projection, that is from the beginning point, till it climbs upwards, reaches a maximum height, and then it climbs downward and falls to the ground. So the total time taken for the journey of the projectile in air, or the total time for which it was in the air, is called as time of flight. And range. Range is the horizontal distance from the starting point to the final point where the projectile finally falls to the ground. So this complete horizontal distance measured from initial point to last point is generally denoted by capital R and is called as the range of projectile. Okay, now we will quickly cover the first derivation, that is the equation of trajectory of a projectile. You have a figure here showing the basic parameters. Now, before going into the details of the derivation here, let me take you through a simple conceptual detail which will be very important in all the coming derivations. So you have to remember the derivation for time of flight, you have to remember the derivation for range, you have to remember the derivation for trajectory, and there are a lot of other derivations that you have to remember how to derive for your examinations. So if I throw something at an angle of alpha and my velocity of projection is u, then I can say that I have thrown an object into the air in such a way so that at any instant during its flight, it has two components of velocity. If this is the angle theta, then this component or the pure vertical component of velocity is u sine theta, and the horizontal component of velocity is u cos theta. So if at any instant during the flight it has two components, then at the instant it was released from the beginning point, at that instant also we can divide the actual projection velocity into two components and name them as the starting velocity in the horizontal direction, or ux, being u cos alpha, and the starting velocity in the vertical direction, or naming it as u suffix y,
being equal to u sine alpha. And obviously, if you remember the concept of dividing any object or any entity into components, then you should also be remembering that once the components have been established, then you remove the original quantity from there. So now, either you can say that I threw a parabola up in the air at an angle of alpha with a velocity u and do not talk about the components. Or you can say that I threw a parabola or a projectile into the air in such a way so that the vertical component of velocity was u sine alpha and the horizontal component was u cos alpha. Okay. Now, why are we dividing the velocity into two components? Is it necessary at this stage? It is necessary to divide it into components because the two components behave completely differently. Now, see what happens is one thing you have to remember that air resistance for the parabola during its time of flight is considered as zero. So, although in the real world, whatever projectile you throw into the air, see, air has certain density, and by virtue of its density and by virtue of the fact that air is some material, it will definitely resist the motion of the projectile that you are throwing. And due to that resistance, there will be a deceleration that will be experienced all throughout its motion, both in the vertical and horizontal direction. But in simple analysis of projectile motion, we generally ignore the air resistance and we say that there is no resistance. But gravity cannot be ignored. Gravity is a universal thing, and you should never ignore gravity until and unless stated in some hypothetical question. But let us see how the components that are divided in the vertical and horizontal direction differ in their characteristics. In vertical motion, the velocity is u sine alpha, and in the vertical direction, you experience an acceleration equal to minus g. So, whatever happens in the vertical direction will be affected by this minus g. But for the horizontal motion of the projectile, where your initial velocity was u cos alpha, the acceleration is zero. This is the basic difference between the two components of velocity. In the horizontal direction, there is no acceleration, no deceleration. In the vertical direction, there is a fixed deceleration value of minus g. And therefore, if you analyze the motion of the parabola or the projectile purely in the vertical direction, you will see that although the projectile started with a velocity of u sine alpha, after some time, this velocity is going to slowly decrease. How is it going to happen? See, the projectile starts like this. So while it is climbing upwards, what do you think is happening to the original velocity u sine alpha? It is continuously decreasing. And as it reaches the topmost point, the velocity in the vertical direction becomes zero. And from this point, it basically starts to fall down only. But why does it not directly fall down here? Because it has a horizontal component of velocity. So, although the vertical velocity becomes zero at the topmost point, it continues to follow the trajectory of the parabola because of the horizontal component. But if you simply compare or analyze the vertical component alone, then you will see that the rest of the journey or this journey of the projectile while it is falling down is basically nothing but very similar to an object dropped vertically downwards from a height. तो ये जो बाकी की जर्नी है इस पैराबोला की यहाँ से लेके यहाँ तक की ये बिल्कुल इसके सिमिलर है यानी कि वर्टिकल मोशन जो है इसका इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू समथिंग सिंपली ड्रॉप्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी.
Okay, so the velocity at this point in the vertical direction is u sine alpha. At this point, it is less than u sine alpha. At this point, all the points you can measure the vertical velocity during the upward travel. And you will see that as soon as the projectile reaches the topmost point, the vertical velocity or u suffix y becomes 0. And then again it starts to increase. After this point, now the vertical velocity is pointed downwards, and now it is increasing because now there is positive gravity acceleration. The acceleration is now positive. So during the upward travel, acceleration is negative. During the downward travel, acceleration is positive. So this is how the velocity in the vertical direction does not remain constant, although the initial velocity is u sine alpha. But what happens to the horizontal motion? If you compare the horizontal velocity at all points of the projectile motion, you ask what is the velocity in the horizontal direction here? The answer is u cos alpha. What is the velocity in the horizontal direction at this point? Again u cos alpha. What is the velocity in the horizontal direction at the topmost point? Again u cos alpha. Now it is falling down. So what is the velocity in the horizontal direction at this point? Again u cos alpha. What is the velocity when it actually is just about to touch the ground? Again u cos alpha. So the nature of the horizontal velocity component of the initial velocity u is such that during the entire motion of the projectile, it simply remains constant. So there will be no further equations that are needed for horizontal motion, or everything for horizontal motion is very simple. Or I can say that if I know the range of my projectile, suppose मैंने नाप लिया यहाँ से पत्थर फेंका था और ये 10 मीटर दूर जाके गिरा, ठीक है, and if somebody asks you what is the time of flight, then you don't even need any formula. You can simply say I know that the horizontal component of velocity is constant and is equal to u cos alpha, therefore time of flight must be simply range divided by u cos alpha. काम ही खत्म. Time of flight ऐसे ही निकाल लो आप. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड करने से ये फायदा होता है कि आप अलग अलग पैरामीटर्स जो हैं पैराबोला मोशन के, आपके प्रोजेक्टाइल मोशन के, you can find them easily. So now one thing is clear, that there are two components of your velocity for a projectile, u cos alpha, or the initial velocity in the horizontal direction, and all throughout the motion, if you measure the pure horizontal velocity, it will always be u cos alpha. There is no decrease or and no increase in the horizontal velocity. But at the same time, the story is not same for the vertical component of velocity. It continuously changes all throughout the journey. While climbing upwards, it starts with a maximum value of u sine alpha. It goes on climbing and simultaneously keeps on decreasing the velocity. At the topmost point, the velocity becomes 0. And then while it is climbing downwards, the vertical velocity changes its direction from upward to downward, and now it is continuously increasing. So vertical component of velocity changes from a maximum value to 0, and then from 0 to again another maximum value. Now let me just check whether you remember your concepts of parabola or projectile motion perfectly or not. If I project a projectile with a velocity of 10 meter per second at an angle of 40 degrees, I would advise you to please take out your calculators to find the answer to this question. Okay, this is the horizontal ground. I want to find out with what vertical velocity the stone touches the ground when it falls down here. This is the question.
I threw a stone up into the air at a speed of 10 meter per second at an angle of 40 degree to the horizontal. It traveled to a certain distance. I don't know the range. I don't know the time of flight. I don't have any equations. But I just want to pick your minds to know whether you can answer this question or not. With what vertical velocity will the stone touch the ground? What is this answer? Actually, if you remember the concepts correctly, you don't have to use a single equation. एक इक्वेशन भी यूज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक सिंपल सा लॉजिक और बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन यूज करनी है. कैन यू गिव मी द आंसर? सर 98 मीटर पर सेकंड. 98 मीटर पर सेकंड कैसे आंसर निकाला? नाउ टेल मी व्हाट कैलकुलेशन यू यूज्ड. सर 10 मीटर पर सेकंड को जीरो वो प्लस जी से इंटू किया 9.8 से. 9.8 से मल्टीप्लाई कर दिया. हाँ सर, प्लस जी की वैल्यू आती ना वो उससे. What is the vertical component of velocity when you threw the stone? यू साइन थीटा. ठीक है, तो कह सकते हैं कि आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट एट दिस पॉइंट व्हेन इट स्टार्टेड इज 10 sin 40. ठीक है, क्या यही सेम वेलोसिटी नहीं होगी जब ये यहाँ पे गिरेगा? यस सर, यही दिस इज होगी. द आंसर. इसीलिए मैंने कहा इसमें और कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, और यही मैं चेक करना चाहता था वेदर यू रिमेंबर दिस और नॉट. वी कैन प्रूव दिस इजीली. ठीक है, कि जिस वेलोसिटी से वर्टिकल वेलोसिटी से ये यहां से प्रोजेक्ट हुआ था, उसी वर्टिकल वेलोसिटी से ये वापस आके गिरेगा. इसके लिए प्रोजेक्टाइल मोशन की भी जरूरत नहीं है. यू थ्रो समथिंग अप इन द एयर. ये कॉन्सेप्ट देखो, यू थ्रो समथिंग वर्टिकली परफेक्टली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. ये वापस कितने स्पीड से आपके पास लौटेगा? उसी स्पीड से लौटेगा, 5 मीटर पर सेकेंड. ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं. सी देयर आर अ लॉट ऑफ स्मॉल ट्रिक्स एंड स्मॉल बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक दिस, लेकिन ये सारी चीजें अपन क्लास में डिस्कस तो नहीं कर सकते क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है अपने पास. तो ये चीजें आपको आएगी कब? जब व्हेन यू सॉल्व सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स यूजिंग योर टेक्स्ट बुक्स. सॉल्व अनसॉल्व सारी प्रॉब्लम सॉल्व करना आपका काम है घर पे बैठ के. बट आई थॉट यू माइट बी नोइंग दिस, लेकिन अब अगर आपको नहीं पता तो ये एक छोटी सी ट्रिक है. ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत काम की चीज है. यू एनी टाइम यू थ्रो समथिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इनटू द एयर, जब वो वापस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे गिरेगी तो उसी वेलोसिटी से गिरेगी जितने से आपने फेंका था, एग्जैक्टली उसी वेलोसिटी से. ठीक है, सो द आंसर टू द क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड यू कि 40 डिग्री पे 10 मीटर पर सेकंड पे एक चीज को फेंकी गई, जब वो जमीन पे गिरेगी तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? तो इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए. टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट पे कितनी गई, कुछ नहीं चाहिए अपने को. बस ये देखो कि स्टार्टिंग के टाइम पे वर्टिकल कंपोनेंट कितना था. इट वाज 10 sin 40. this will be the exact velocity with which it is going to fall back down. ठीक है, चलो अब अपन आगे चलते हैं. Once we have understood the concept of vertical component of velocity and horizontal component of velocity, now let us look at this derivation, the derivation of trajectory of projectile. यानी कि हम बेसिकली अब इस डेरिवेशन में ये प्रूव करने जा रहे हैं कि हवा में फेंकी हुई वस्तु जो पाथ फॉलो करेगी वो एक पैराबोला है. ये प्रूव होने जा रहा है अभी. ठीक है, सो वंस अगेन वी स्टार्ट द स्टोरी दैट यू थ्रू समथिंग अप इन द एयर एट अ वेलोसिटी ऑफ u. ये गिवन है. And as soon as you saw the angle of projection of alpha, which is always measured with the horizontal, I will remind you again, then you can say that the vertical component of velocity initially was u sin alpha, but you know that with time it is going to change. The horizontal component of velocity is u cos alpha, and again you know that with time it is not going to change. ये तो कांस्टेंट रहेगी, ये चेंज हो जाएगी थोड़े टाइम बाद. ठीक है, जैसे ही छोड़ा फिर ये हर पॉइंट पे चेंज होती जा रही है. यहाँ पर आकर के जीरो होगा और यहाँ से फिर बढ़ता हुआ नीचे वापस से यहाँ पर जब गिरेगा तो फिर से u sin alpha हो जाएगा. ठीक है, बट एनीवे वी स्टार्ट विद दिस.
u sin alpha vertical component of velocity initial, u cos alpha horizontal component of velocity initial. ठीक है, and you select a point on the path. अच्छा, अभी हम ये मान रहे हैं कि हमें ये पता ही नहीं है ये पाथ क्या है, कुछ नहीं पता है इसके बारे में. पैराबोला हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है, या कोई ऐसे रैंडम कर्व हो सकता है. वी डोंट नो. Until and unless we have the equation in our hands, we can never be sure कि ये पाथ क्या होगा. तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, टेक अ पॉइंट ऑन द पैराबोला, सॉरी ऑन द प्रोजेक्टाइल, वी डोंट नो इट इज अ पैराबोला, ठीक है, एंड फ्रॉम द ओरिजिन टेक द डिस्टेंस. तो आपने बोला कि चलो इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स हो गई पी पॉइंट की, दे आर एक्स कॉमा वाई. ठीक है, आगे चलें. फिर क्या बोलता है, फिर ये बोलता है कि ये जो y डिस्टेंस है, ये वाले डिस्टेंस, फॉर दिस y डिस्टेंस आई कैन अप्लाई द इक्वेशन फॉर वर्टिकल मोशन. अब जैसे कि मैं ये कह रहा हूं कि ये पार्टिकल यो ट्रैवल करते करते अभी यहां पर आया है, अभी यहां पर मैंने इसको फोटो खींच ली इसकी, और मैंने बोला कि ये जमीन से y डिस्टेंस ऊपर पहुंच गया ये पत्थर. सो नाउ आई एम गोइंग टू apply all the vertical direction equations. तो vertical direction में आपकी acceleration जो है that is equal to minus g. तो मैं ये कह सकता हूं कि आपके पास में एक इक्वेशन थी s is equal to ut plus half at square, ये एक इक्वेशन है. v square minus u square is equal to 2as, एक ये इक्वेशन है. ये कौन सी इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशंस तब वैलिड होती है काइनेमेटिक्स में जब आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट अप्लाई हो रही हो. तो आपकी एक्सेलरेशन माइनस जी जो है दैट इज अ कांस्टेंट. सो आई कैन अप्लाई दिस इक्वेशन, आई कैन अप्लाई दिस इक्वेशन, एंड ऑब्वियसली आई कैन अप्लाई v इज इक्वल टू u प्लस at. ये तीनों इक्वेशंस मैं वर्टिकल मोशन के लिए अप्लाई कर सकता हूं. हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए ये तीनों नहीं लगेगी. क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सेलरेशन 0 है. ठीक है, तो वर्टिकल मोशन प्योर अगर मैं लूं, सो आई कैन से कि मैं इन तीनों में से कोई सी भी सूटेबल चीज अप्लाई कर सकता हूं इसमें. नाउ लेट अस सी व्हिच वन वी आर गोइंग टू अप्लाई. ये कौन सा फॉर्मूला लगाया हुआ दिख रहा है आपको इन तीनों में से? फर्स्ट वाला लगा दिया. तो अब ये बोल रहे हैं फर्स्ट वाले के हिसाब से y is equal to ut plus half at square होना चाहिए. What is the initial velocity in the vertical direction? u sin alpha. तो ये जो ut था, तो इनिशियल वेलोसिटी की बजाय u की बजाय मैं लूंगा u sin alpha मल्टीप्लाइड बाय t. फिर उसके बाद मैं लूंगा प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर. लेकिन एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी है, तो प्लस हाफ के जगह पे माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये फॉर्मूला कैसे बना है. दिस फॉर्मूला हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय टेकिंग ओनली द वर्टिकल डायरेक्शन ट्रेवल ऑफ द पार्टिकल एंड इग्नोरिंग द हॉरिजॉन्टल ट्रेवल. तो हमने बोला कि टी टाइम में ये पार्टिकल यहां से चलते चलते यहां पहुंचा है वाई हाइट पे. तो वर्टिकल डायरेक्शन की इक्वेशन तो वैलिड होनी चाहिए क्योंकि g कांस्टेंट है आपका, नेगेटिव लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, नाउ अगेन लुकिंग एट दिस इमेज, आपने ये कहा, हाँ बोलो सर ये इसमें यही फॉर्मूला कैसे लगेगा अपने को, ये कैसे पता चलेगा, और कोई क्यों नहीं लग सकता? सारे लग सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि सबसे सूटेबल कौन सा फॉर्मूला है. आप जिस चीज को टारगेट कर रहे हो ना, उस चीज के हिसाब से. अब देखो आपको अगले 2 स्टेप में समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला क्यों यूज किया अपन ने और दूसरे फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किए. ठीक है, एक सेकेंड आप सुनना अब आगे. अब देखो ये क्या कह रहा है, पार्टिकल केम फ्रॉम हियर एंड वेंट टू दिस पॉइंट. तो हमने कहा कि t time was taken for the particle to reach from here to here. तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पार्टिकल ने x डिस्टेंस ट्रैवल करने में जो टाइम लगाया वही टाइम पार्टिकल ने y डिस्टेंस ऊपर को ट्रैवल करने में लगाया? वापस से इस चीज को सुनो, पार्टिकल जब यहां से यहां पैराबोलिकली ट्रैवल कर रहा है या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन की पाथ पे ट्रैवल कर रहा है, तो x भी चेंज होता जा रहा है, y भी चेंज होता जा रहा है.
और इस पॉइंट पे x और y एक साथ पहुंचे यहाँ पे। समझ में आया आपको? When the particle is here, then your x is here. When the particle is here, your x is here. When the particle is here, your x is here. उसी तरीके से आप अगर बाकी चीजों को भी देखें, when your particle is here, तो आपका y तो हुआ ये और x हुआ ये। When the particle is here, तो आपका y और x साइमल्टेनियसली चेंज हो रहे हैं, और जब पार्टिकल यहाँ आया तो उसी एग्जैक्ट मोमेंट पे आपका y भी बना और उसी एग्जैक्ट मोमेंट पे आपका x भी बना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि x डिस्टेंस ट्रेवल करने में हॉरिजॉन्टली जो टाइम लगा, वही टाइम y डिस्टेंस वर्टिकली ट्रेवल करने में लगा उस पार्टिकल को? ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं अपन? ये चीज समझ में आई है? ये क्लियर हो गया ना? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर y डिस्टेंस ट्रेवल करने में ये t टाइम लगा, तो y डिस्टेंस के लिए तो मैंने ये इक्वेशन लगा दी। अब x डिस्टेंस के लिए कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा? x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है? u cos अल्फा है, और टाइम वही लग रहा है t। तो x डिस्टेंस नापूं तो सिंपली u cos अल्फा इंटू t हो गया। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज bring u cos alpha below this x and take the expression of time taken as x upon u cos alpha, और ये जो t की वैल्यू मेरे को x के टर्म्स में मिल गई, उसको मैं यहां पर और यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। and when I make this substitution I get an equation like this: y is equal to u sin alpha into टाइम की जगह पे x upon u cos alpha आ गया, माइनस हाफ, और टाइम स्क्वायर की जगह पे x upon u cos alpha का होल स्क्वायर आ गया। Now you simply simplify it and rearrange it, you get the equation of trajectory of motion as y is equal to x tan alpha minus gx square upon u square cos square alpha। अब ये रीजन अपन डिस्कस कर लेते हैं कि ये दूसरे इक्वेशन क्यों नहीं यूज किए। ठीक है, अब देखो, आपको टाइम रिलेशन पता है, वेलोसिटी और ये सारी चीजें पता है। क्या आपको फाइनल वेलोसिटी का कोई अंदाजा है? अभी अगर मैं ये फिगर वापस से दिखाऊं और मैं इस पी पॉइंट पे आपसे पूछूं कि वेलोसिटी कितनी है, आप बता पाओगे? नहीं बता सकते। तो अपन ने क्या किया, और वैसे भी अपन को एस्टेब्लिश क्या करना है, अपन को एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें y और x का रिलेशनशिप हो, तब जाकर के ही तो आप, भाई आपने जैसे एक ग्राफ बनाने को कहा किसी को, ठीक है, बोला कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और बोला कि एक कर्व है, इस पे कुछ कर्व, ऐसा ही कुछ कर्व है, बोला कि इस कर्व की इक्वेशन बताओ। तो इस कर्व की इक्वेशन कैसे आएगी? ऐसे ही तो आएगी, y इज अ फंक्शन ऑफ x। अगर आपकी ग्राफ x और y में ना हो करके x इधर है और यहां पर t है और यहां पर कोई कर्व है, और बोला कि भाई इस कर्व की इक्वेशन बताओ, तो इस कर्व की इक्वेशन कैसे आएगी? दिस विल बी एक्सप्रेस्ड एज x एज अ फंक्शन ऑफ t। दिस इज द ग्राफ थ्योरी कि x एक्सिस और y एक्सिस पे कौन कौन सी चीजें बैठी है आपकी, उसके हिसाब से ही आपका मैथमेटिकल फंक्शन बनेगा। तो अब आपने पैराबोला जो छोड़ा है, दिस इज द x एक्सिस, यानी कि इस डायरेक्शन में क्या मेजर हो रहा है? x मेजर हो रहा है, और इस डायरेक्शन में क्या मेजर हो रहा है? y मेजर हो रहा है। तो अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं इसके पाथ की इक्वेशन पता कर रहा हूं, तो बेसिकली आप क्या एक्सप्रेस करना चाहते हो? यू वांट टू फाइंड एन इक्वेशन व्हिच एक्सप्रेसेस y एज अ फंक्शन ऑफ x। तो इसमें टाइम नहीं होना चाहिए, इसके अंदर सिर्फ y होना चाहिए, x होना चाहिए, और कोई कांस्टेंट हो तो वो सब आपकी इक्वेशन में आ जाए। नाउ लुक एट दिस इक्वेशन दैट यू अराइव्ड एट। क्या अल्फा कांस्टेंट है कि नहीं? आपने जिस एंगल पे प्रोजेक्टाइल को छोड़ दिया वो तो छोड़ दिया, वो तो फिक्स हो गई। तो अल्फा कांस्टेंट है तो tan अल्फा कांस्टेंट हो गई, स्मॉल g कांस्टेंट है, जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को छोड़ दिया वो कांस्टेंट हो गई, तो ये भी कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है। तो ये देखो, ये g अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा पूरी कांस्टेंट है, x स्क्वायर अलग से आ गया, x अलग से आ गया।
So now y has been successfully established as a function of x, and this is the equation of the path taken by the projectile. और ये एक्सप्रेशन आपको याद भी रखना है, ठीक है? ये इधर बॉक्स लगा दिया मैंने. You remember this equation now. Y is equal to x tan alpha minus gx square upon 2u square cos square alpha. क्योंकि आपके कई सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इस इक्वेशन को मेमोरी से लेके आना पड़ेगा आपको. You have to bring this equation out of memory and then directly use in your numerical problems. ठीक है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या कि आपने ये इक्वेशन क्यों यूज की, कैसे यूज की, एंड इवेंचुअली हाउ डिड यू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर expression or equation of trajectory of projectile. Is this clear or not? देखो ये पहली बार तो नहीं कर रहे हो, ये आपने स्कूल में भी किया हुआ है. हाँ सर. हाँ सर ये तो उसकी पैराबोला की इक्वेशन तो है ही नहीं, इसमें तो प्रूफ तो ये करना था ना, पैराबोला है, अपने को पता नहीं था ना. किसने कहा आपको पैराबोला की इक्वेशन नहीं है? ये पैराबोला की ही इक्वेशन है. पैराबोला की इक्वेशन शायद आप ये बोलते हो, इसी को पैराबोला की इक्वेशन मानते हो. Yes, लेकिन sir. आपको शायद ये नहीं पता कि अगर मैं इसके साथ में ये और लिख दूं, ये भी पैराबोला है. अगर मैं इसके साथ में ऐसा कुछ कर दूं, ये भी पैराबोला है. ये आपको पता नहीं है. दिस इज द सेम थिंग. दिस इज अ पैराबोला. अगर आप ये दूसरी टर्म नहीं बनाते हो और सिर्फ इतना सा पैराबोला बनाते हो, तो आपका पैराबोला ऐसा बनता है. जो भी आपके ऐसे टर्म्स होते हैं ना, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर या फिर x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर, इस तरह के जो सिंपल एक्सप्रेशंस वाले पैराबोला होते हैं, वो ऐसे पैराबोला होते हैं जो कि परफेक्टली एक्सिस के साथ में है. लेकिन अगर कोई ऐसा पैराबोला बनाने की कोशिश करूं जो कि मतलब बिल्कुल एक्सिस से अलाइंड नहीं है, लेट अस से देयर इज अ पैराबोला लाइक दिस, तो इसकी क्या इक्वेशन होगी? तो इसकी इक्वेशन ये नहीं होगी. इसकी इक्वेशन कुछ ऐसी होगी जिसमें कि x के टर्म्स भी आ जाएं. तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किस चीज की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, विच standard mathematical entity is represented by this equation? What will be your answer? लाइन की. लाइन कैसे होगा बेटा? लाइन में स्क्वायर आ ही नहीं सकता ना. अगर मैं ये लिखूं y is equal to 2x minus 1, then it is a line. लाइन तो लीनियर है, लीनियर में कोई हायर पावर हो ही नहीं सकती. कभी भी स्क्वायर दिखे और स्क्वायर से ज्यादा की कोई पावर नहीं हो, then it is always a parabola. Always. ये क्या है? y is equal to 2x square. It's a parabola. ये क्या है? y is equal to minus x plus x square. It is a parabola. ये क्या चीज है? x is equal to y square minus 2y. Parabola. ये सब पैराबोला है. पावर देखनी है आपको. अगर 2 मैक्सिमम डिग्री है आपके पॉलिनोमियल की, तो ये जो फंक्शन होता है x और y का, दिस इज ऑलवेज अ पैराबोला. ये आपको नहीं पता था, आज मैंने आपको बता दिया है. और पैराबोला हमेशा प्योरली x इज इक्वल टू 4ay स्क्वायर नहीं होता. ये तो सिंपलेस्ट पैराबोला है. दिस इज द बेसिक एलिमेंट्री टाइप ऑफ पैराबोला. बाकी ये सब पैराबोला है. दीज आर ऑल पैराबोला. ठीक है? तो पैराबोला है कि नहीं है, इसका जजमेंट कैसे करने का है? सिर्फ ये देखना है कि क्या हाईएस्ट पावर 2 है कि नहीं. अच्छा, ये क्या चीज है? ये पैराबोला है क्या? नहीं सर. ये नहीं है पैराबोला. कैसे पता लगा? क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 3 है. ठीक है? अच्छा, ये क्या है? पैराबोला है सर. ये पैराबोला है. यहाँ पर ट्रिक कर दिया. देखो, आप ये बोलोगे कि यहाँ पर तो x की पावर हाफ है और 2 चाहिए, लेकिन आप ये नहीं देख पा रहे हो कि इफ आई स्क्वायर बोथ साइड्स देन दिस बिकम्स y स्क्वायर इज इक्वल टू x. अब आ गई ना मैक्सिमम पावर 2. दिस इज अ पैराबोला.
तो पैराबोला कई तरह से छुपी होती है इक्वेशनों में. You should know how to identify a parabola simply by looking at the equation. ठीक है. Now look at this equation back again. ये कांस्टेंट है tan अल्फा, तो x इंटू tan अल्फा हो गया, तो ये तो x की पावर 1 है. अब ये पूरी चीज कांस्टेंट है, g बाय 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, दिस इज होल थिंग इज अ कांस्टेंट. तो ये क्या हो गया, आपकी इक्वेशन हो गई, लेट अस से y इज इक्वल टू फर्स्ट कांस्टेंट इनटू x माइनस सेकंड कांस्टेंट इनटू x स्क्वायर. ये पैराबोला है कि नहीं है, आप बता दो. अब इज दिस अ पैराबोला? यस, इट इज अ पैराबोला. इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए. सारी पावर्स लीनियर, मतलब होल नंबर्स में होनी चाहिए, और मैक्सिमम पावर आपकी अगर 2 है, देन इट इज अ पैराबोला. यू डोंट हैव टू लुक एट एनीथिंग एल्स. 100% गारंटी है पैराबोला है. ठीक है. सो एनीवे, ये डेरिवेशन आपने सीख ली, द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल which comes out as a parabola. So if somebody asks you कि prove that the trajectory is a parabola, तो आप यहां तक इसको derive कर दो, और उसके बाद simply ये बोल दो कि as can be seen the maximum power of x on the right hand side is 2, therefore it must be a parabola. ठीक है, इतना सा लिखना काफी है. आगे चले, can we move forward now? बोलो भाई, या कोई कंफ्यूजन? yes sir. ठीक है. Now let us come to the next derivation, that is time of flight of projectile on a horizontal plane. ठीक है. तो यानी कि अपन को बेसिकली अब क्या पता करना है कि हमने किसी एंगल अल्फा पे किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया विद अ वेलोसिटी ऑफ u. सो 2 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड इनिशियली. कितनी वेलोसिटी से फेंका और कितने एंगल पे फेंका, ये 2 चीजें चाहिए, और इसके बाद बाकी सारी चीजें अपने आप डिराइव कर सकते हो आप. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज हाउ मच टाइम इज टेकन फॉर द ऑब्जेक्ट टू ट्रेवल टू द मैक्सिमम हाइट एंड देन फॉल डाउन टू द ग्राउंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं इसको. ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट. वंस अगेन यू स्टार्ट विद दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ये अब पहचानी हुई इक्वेशन हो गई आपको. ये क्या चीज बता रहा है, ये बोल रहा है कि वर्टिकल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, यानी कि आप अब ये ट्रैजेक्टरी बनाओ और ये ग्राफ यहाँ पे प्लॉट कर दो ऐसे. ठीक है, ये बोलो कि भाई अपवर्ड डायरेक्शन तो y है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन x है. तो अब मैं ये y जो है, ये किस चीज को बोल रहा हूं? आई एम कॉलिंग एनी पॉइंट टेकन ऑन द ट्रैजेक्टरी एज y. तो यानी कि मैं इसको भी y ले सकता हूं, मैं इसको भी y ले सकता हूं. इस पॉइंट की ये डिस्टेंस नाप ली तो ये भी y है, इस पॉइंट से लेकर के वर्टिकल डिस्टेंस नाप ली तो ये भी y है. तो मैं पैराबोला के ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट मार्क कर दूं रैंडमली, एंड इफ आई टेक द वर्टिकल डिस्टेंस देन इट इज गिवन बाय y, एंड दैट y, since it is a purely vertical directional travel, I can apply the kinematic principles in the vertical direction, and I can say that okay, since the acceleration acting in the vertical direction is constant and equal to minus g, I can use any of these 3 formulae. कौन से 3 फॉर्मूले? ये वाले. तो वर्टिकल डायरेक्शन की प्योर ट्रैवल को अगर मैं पैराबोला में कंसिडर करूं तो मैं इन तीनों में जो भी मेरी इच्छा हो वो लगा सकता हूं. अब मेरे को ये देखना है कि इन तीनों में सबसे सूटेबल मेरे को कौन सा लगता है. तो ऐसा नहीं है कि ये क्यों लगाया, ये क्यों नहीं लगाया. ये आपको आपका इंटेलिजेंस यूज करना है कि ये अगर नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा. कर तो सकता हूं, ये भी वैलिड है. आई कैन यूज दिस ऑल्सो, आई कैन यूज दिस ऑल्सो, आई कैन यूज दिस ऑल्सो, but I will have to look into the situation and decide which is most suitable for the moment. तो अभी फिलहाल मेरा क्वेश्चन तो ये है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन कर रहे हैं, तो पहली बात तो एक ऐसा इक्वेशन उठाना पड़ेगा जिसमें टाइम दिखे, है कि नहीं? सीधी सी बात है. तो अब इन तीनों में से ऐसे कौन सी इक्वेशंस हैं जिसमें कि टाइम दिख रही है आपको? इसमें तो नहीं दिख रही. b² - u² = 2as. तो जब टाइम ही नहीं है इसमें, तो इससे टाइम ऑफ फ्लाइट तो डिराइव होगा नहीं.
अब या तो ये यूज करो या तो ये यूज करो, लेकिन ये लास्ट वाला यूज करने में प्रॉब्लम क्या है, इनिशियल वेलोसिटी तो पता है, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता। ठीक है, इसीलिए अपन वापस से फर्स्ट इक्वेशन को पकड़ लेते हैं। सो दिस इज नॉट अ वेरी बिग डील, इतना ज्यादा डिटेल में मेरे को आपको समझाने की जरूरत भी नहीं है, यू आर इंटेलिजेंट इनफ। बट एनीवे वी अगेन स्टार्ट विद दिस इक्वेशन, क्योंकि इसमें टाइम दिख रहा है। ठीक है, यहां पर भी है यहां पर भी है। हमने बोला कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ द पैराबोला लेट अस से व्हाट इज द वर्टिकल हाइट ऑफ द पार्टिकल एट दैट पॉइंट। तो हमने कहा कि इट इज y एंड दिस y कैन बी गिवन एज u sin अल्फा t माइनस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, अब ये बोलता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट की एक कॉन्सेप्ट और है। नाउ प्लीज लिसन केयरफुली टू व्हाट आई एम सेइंग। यहां पर ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। हाँ, सर वो आपने इधर की लिया है साइड में y की डायरेक्शन, तो उसके नेक्स्ट साइड में भी तो ले सकते, जी पॉजिटिव भी तो आ सकता है उसके अंदर। देखो, जब आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हो तो उस टाइम पे आपकी एक्सेलरेशन माइनस जी है। ठीक है, तो आपने जब प्रोजेक्ट कर दिया तो उस टाइम की इक्वेशन बन जाएगी ये वाली, और उसके बाद ये जाकर के मैक्सिमम हाइट पे गया और उसके बाद ये जो गिर रहा है, यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दैट, दैट इज द नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। बट व्हाट इज द कोर्स सेट बाय यू? The course set by you was not in the downward direction where you take g as positive. The course set by you, or the equation given to the parabola, was with a minus sign of g. ठीक है, तो एक बार आपने इसकी इक्वेशन बना दी, फिर उसके बाद आगे की जो ट्रेवल है उसके लिए वो जो g पॉजिटिव होना है वो अपने आप इक्वेशन में एडजस्ट हो जाती है, इट ऑटोमेटिकली गेट्स एडजस्टेड। ठीक है, आप और कुछ डाउट पूछ रहे थे मेरे से, या ये मैंने सही बताया आपको? नहीं सर, ये पूछ रहा था। यही पूछ रहे थे ना? अब क्लियर हो गया आपको? आपने जो पैराबोला को ट्रिगर किया है वो इक्वेशन में आएगा। ठीक है, हालांकि वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी तो अपन सिर्फ यू ही तो ले रहे हैं ना अपन, बाद में जाकर के यहाँ तो यू जीरो ही हो जाता है, यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर यू की डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है, यहाँ पर यू साइन अल्फा पॉजिटिव है, यहाँ पे यू साइन अल्फा नेगेटिव है। तो उसी तरह से ही है, जी को आपने जो ट्रिगर किया है आपकी इक्वेशन उससे बनेगी, बाद में वो अपने आप जाकर के कहा साइन चेंज करेगा माइनस का, कब वो पॉजिटिव हो जाएगा, वो इक्वेशन अपने आप ही उसको ट्रांसफर कर लेगी। भाई पैराबोला की इक्वेशन में स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो वो अपने आप ही उसको कोप अप कर लेता है जहां पर भी जिसको करना है। ठीक है, पैराबोला की जो ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन है दैट ऑटोमेटिकली टेक्स केयर ऑफ दैट। सो एनीवे व्हाट आई वाज सेइंग इज कि अपन ये इक्वेशन लगा सकते हैं। अब यहां पर तर्क क्या किया जा रहा है, ये बोल रहा है कि यहां पर y की वैल्यू कितनी है ये बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y एट दिस पॉइंट हियर। जब मैं फेंक रहा हूं, जस्ट एट द मोमेंट आई एम थ्रोइंग द स्टोन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? u sin theta. इट इज जीरो। भाई ट्रैजेक्टरी को देखो, Yes sir. मैं y पूछ रहा हूं आपसे, वेलोसिटी नहीं पूछ रहा। वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ थ्रोइंग इज u, ठीक है, और वर्टिकल पूछूं तो u sin अल्फा, और हॉरिजॉन्टल पूछूं तो u cos अल्फा। मैं आपसे u तो पूछ ही नहीं रहा, मैं ये पूछ रहा हूं कि y कितना है इस पॉइंट पे, y डिस्टेंस कितना है, इट इज जीरो। y डिस्टेंस कब बनती है? जब ये ट्रैजेक्टरी पे ऊपर चढ़ती है तब जाके y कुछ बनता है, तब जाके कुछ वर्टिकल डिस्टेंस आती है। मैक्सिमम y कहां बनेगा? इस पॉइंट पे बनेगा। ठीक है, और उसके बाद y कम होना चालू हो जाएगा। अब मैं ये पूछ रहा हूं इस पॉइंट पे y कितना है? हियर Zero sir, zero. इट इज अगेन जीरो। तो इसका मतलब है कि इफ आई टेक दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है आपकी ट्रैजेक्टरी की, या फिर इफ आई टेक दिस इक्वेशन विच इज सिंपली रिप्रेजेंटिंग y विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये मैं यहां पर ये तर्क करना चाहता हूं कि टाइम की दो वैल्यूज हैं। एक तो टाइम t इक्वल टू जीरो पुट करूं अगर मैं इस इक्वेशन में, तो मेरे को y जीरो मिलता है।
मिलता है कि नहीं मिलता है ये देख के बता दो. इफ आई पुट t is equal to 0 in this equation, will I get y 0 or not? यस सर. इसका मतलब क्या है? t इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? t इक्वल टू 0 कहां पर है? थ्रो करते टाइम, है ना? जस्ट मैं जब फेंक रहा हूं तभी तो मैं अपना वॉच चालू करूंगा, अपना टाइमर तभी तो स्टार्ट करूंगा. तो दिस इज द पॉइंट ऑफ t इक्वल टू 0. तो t इक्वल टू 0 पे मेरी y 0 है, मुझे पता है. बट लुकिंग एट द पाथ ऑफ द parabola, I know that at some time, some another time t, the y is again going to become 0. सही है कि नहीं है? एक तो है t इक्वल टू 0 पे y 0 है, और एक और दूसरा टाइम मिलेगा t जिसपे फिर से y 0 हो जाएगी. ये मेरा आंसर है टाइम ऑफ फ्लाइट का. दिस इज व्हाट द टाइप ऑफ लॉजिक दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर. ठीक है, तो आपने पहले तो इक्वेशन लिखी कि द y डिस्टेंस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t कैन बी गिवन बाय दिस इक्वेशन. ठीक है साहब, ये तो हो गया. फिर आपने बोला कि टाइम t इक्वल टू 0 पे y 0 होगा, और एक दूसरा टाइम और मिलेगा t जिसपे कि ये पार्टिकल यहां पे आके गिर रहा है, उस पे वापस से y 0 हो जाएगा. एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज. वी नो दैट व्हेन द पार्टिकल इज एट a, y इज 0. ठीक है, ए का मतलब ये वाला पॉइंट ये रहा. तो इस पॉइंट पे y फिर से 0 होने वाला है. तो अपन क्या करेंगे? वी विल सिंपली पुट दिस y इक्वल टू 0. अब आपकी टाइम की एक इक्वेशन बन गई जिसका लेफ्ट हैंड साइड 0 है. इस वाली क्वांटिटी को उस तरफ ले आओ, तो ये हो जाएगा u sin alpha t is equal to half gt square. t और t को कैंसिल करो, तो u sin alpha is equal to half gt, and you isolate your time as 2u sin alpha upon g, and this becomes the time of flight. इतना सिंपल सा डेरिवेशन है इसका. ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसका लॉजिक क्या है? आपको इतनी लंबी चौड़ी कहानियां भी नहीं बतानी है, सिर्फ एक सेंटेंस लिखना है आपको. क्या सेंटेंस लिखना है? ये पैराबोला का फिगर बनाया, और उसके बाद यहां पर बोलना t इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0, और यहां पर बोलना कि यहां पर जब पार्टिकल आके गिर गया तो आपका टाइम कंप्लीट हो गया. दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट. सो यू से दैट एट टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T, y इज अगेन इक्वल टू 0. दो पॉइंट्स पे y 0 बन रही है. तो ये जो इक्वेशन है इसमें t को 0 पुट कर रहा हूं तब तो 100% y 0 आ रहा है. लेकिन अगर मैं इधर t को कैपिटल T पुट करता हूं तो भी y 0 हो जाएगा. सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू पुट 0 हियर एंड पुट अ कैपिटल T हियर. बोलना कि कैपिटल T टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के एंड में भी y 0 बन रहा है, तो यहां पर इसको 0 कर दो. अब उसके बाद ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट. ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इज दिस क्लियर और नॉट? यस सर. ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये नोट्स में आज आपको आपके इसमें अटैच करके दे देता हूं. वी विल स्टॉप द लेक्चर हियर, बट व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू इज स्टडी दिस पार्ट ऑन योर ओन. हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल खुद पढ़ो, और ये देखो बहुत सिंपल सिंपल डेरिवेशंस हैं, और ये ऑलरेडी स्कूल में कर चुके हो, और मैं इस पे और ज्यादा टाइम देना चाहता नहीं हूं. तो आप इसको पढ़ो, मैक्सिमम रेंज की कंडीशन को डिराइव करो, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट देखो, कौन सा फॉर्मूला लगाया है ये देखो. रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन से अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, तो अभी आपको आज मैंने क्या क्या सेल्फ स्टडी दिया, कोई न्यूमेरिकल या कोई भारी काम नहीं दिया है. मुश्किल से 1 पेज का कंटेंट, 1 या 1.5 पेज का कंटेंट दे रहा हूं सेल्फ स्टडी के लिए. ठीक है, क्या क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, कि मैं यहां से यहां तक प्रोजेक्टाइल को फेंकता हूं तो ये जो रेंज है r, इसका क्या फॉर्मूला आता है, फाइंड इट आउट, रीड दिस कंटेंट. कहीं और किताब में भी नहीं पढ़ना, ये जो नोट्स है इसी में सब कुछ दे रखा है मैंने. ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन टू अचीव द मैक्सिमम रेंज. ये सब आपको पता है, 45 डिग्री आता है, यू हैव ऑल लर्न्ड दिस अर्लियर. फिर अनदर वन दैट यू हैव टू डू इज मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन.
ठीक है, यानी कि मैं एक पर्टिकुलर अल्फा पे अगर u वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को फेंकता हूं तो इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी आती है, h. व्हाट इज द रिलेशन फॉर दिस, ये चीज पता करो. एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन आल्सो, व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम हाइट. ठीक है, द आंसर शुड बी π/2. ट्राई टू फाइंड इट ऑन योर ओन. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इसकी अंडरस्टैंडिंग में तो आप मेरे से नेक्स्ट लेक्चर की ओपनिंग में ही पूछें, मैं वहीं क्लियर कर दूंगा. ठीक है, और अगर आप लोगों की तरफ से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आता है, इफ ऑल ऑफ यू आर साइलेंट ऑन दिस टॉपिक, then I will assume that you have studied this and understood this and learned the derivation and remembered the formula. You have studied this, understood this and learned the formula as well as the condition for maximum range. ये दो टॉपिक आपको छोटे छोटे पढ़ने को दे रहा हूं. रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. ठीक है, we will stop the lecture now.